इक्वेशन बताई थी विच इज KY माइनस HI। ये सब इतना सबको समझ में आ गया था? यस सर। ओके, नो आगे चलते हैं। आगे चल रहा था, ठीक है। ओके, वीडियो देख लिया आप लोगों ने जो मैंने आपको वीडियो भेजी थी? जी सर। रघुराम राजन वाली वीडियो देखी? यस सर। समझ में आई? वही डेटा वही था ना? सेम वही था सर। हाँ, एंड ओके। So let me tell you money market equilibrium first, though you have covered this topic in your last semester. On y-axis we take rate of interest, on x-axis we take income. I told you in last class that we take money supply as exogenous because it is determined by whom? It is determined by whom? RBI, central bank. Central bank. And money demand curve is downward sloping. Money demand curve is downward sloping. Reason being, what is the reason why it is downward sloping? सर इंटरेस्ट ज्यादा होता है तो हम कम डिमांड करते हैं, इंटरेस्ट कम होता है तो ज्यादा डिमांड करते हैं। हाँ, because there is a negative relationship between rate of interest and money, quantity of money. यहाँ पे money आएगा, quantity of money. Okay, and let me write the function of money demand, that is KY minus HI. So the point where money demand curve intersect money supply curve is your equilibrium rate of interest. Is your equilibrium rate of interest. Yes? Yes or no? ठीक है सर। Now let me tell you why this is your equilibrium and what happen if rate of interest will be less and what happen if rate of interest will be more. Let me tell you this. Suppose the rate of interest is I naught. Suppose the rate of interest is I naught. At I naught rate of interest, suppose you met money supply at point A and money demand at point B. So if there is a less rate of interest, the money demand will be more and money supply will be less. Money demand will be more and money supply will be less. So what is the phenomena that we experience in the economy? The phenomena that we experience in the economy will be known as excess demand of money. Excess demand of money. Now, to control this excess demand of money, to overcome from this situation, what RBI need to do? RBI will increase rate of interest. What will RBI do? RBI will increase rate of interest. When RBI increase rate of interest, money demand start decreasing. And it kept on decreasing
until equilibrium is not attained. Yes or no? Yes, sir. And if suppose your rate of interest is somewhere high, suppose it met money demand at C and money supply curve at D, so there will be what? Excess supply of money. Excess supply of money. There will be excess supply of money. When there will be excess supply of money, what RBI need to do? RBI will start decreasing rate of interest. Yeah. When RBI start decreasing rate of interest, the money demand will start increasing, and it kept on increasing until your equilibrium is not Attained. Yes or no? Yes. Sir. So the algebra, whereas the algebra is where money supply equals to money demand. What is your money supply? Money supply is your real money supply. Money demand is what? KY minus HI. KY minus HI. Yes. So this will be your equation of equilibrium, money market equilibrium. Money market equilibrium. Yes or no? ठीक है सर. ठीक है. अब मैं आपको मनी मार्केट इक्विलिब्रियम से LM कर्व ड्राइव करके दिखाता हूं. लेट मी ड्राइव द LM कर्व फॉर यू. Let me derive this LM curve for you. सोच रहा हूँ यही मैं भी यहीं पे कर देता हूँ. ओके, ये सबको समझ में आ गया ना बच्चों? बाकी लोग जो नहीं बोल रहे हैं. सर हाँ यस सर. कॉलेज कब से खुल रहे हैं? 12 से. और आज क्या डेट है? 7. बच्चों, ये मेरा LM कर्व था, मतलब ये मेरा मनी मार्केट इक्विलिब्रियम था, जहां मनी सप्लाई मनी डिमांड से मिला KY माइनस HI. ये मेरा मनी सप्लाई कर्व था which is exogenous. This was my सर लेफ्ट साइड होने से नेगेटिव होते हैं. हाँ जी सर ग्राफ जो लेफ्ट साइड होने से नेगेटिव होते हैं. नेगेटिव कहाँ है? अच्छा अभी मैं इसको ना ऐसे कर देता हूँ ना, रुको अभी स्क्रीन आप अपने फोन को रोटेट कीजिए. ठीक है सर. लैंडस्केप में कीजिए अपने फोन को. कर रहे हैं? जी सर. जब आप अपने फोन को लैंडस्केप में करेंगे ना, हॉरिजॉन्टल करेंगे तो ज्यादा बेटर व्यू आएगा. आ रहा है सबके पास ऐसे ही हॉरिजॉन्टल करने पे? वर्टिकल नहीं करना है. वर्टिकल में आपको नेगेटिवली लगेगा. मैं ग्राफ पॉजिटिव बना रहा हूं. किया सबने? हाँ सर. ठीक है. केशव? यस सर, कर दिया. समझ में आ रहा है? क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं हम? केशव क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं? सर LM का. हाँ, LM की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विडिटी मनी सर. हाँ, वेरी गुड. ठीक है, तो ये मेरा इक्विलिब्रियम था. ये मेरा इक्विलिब्रियम था ई नोट पे. मैंने इस इक्विलिब्रियम को ये जो मेरा इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट था,
इसको किसी आउटपुट पे मैंने मार्क कर लिया कि इकोनॉमी में लेट्स से आउटपुट y नॉट प्रोड्यूस हो रहा था. सपोजिंगली एट rate of interest I naught, the output produced was y naught. The output produced was y naught. Now, suppose in the economy output increased. Output increase. So this is when your output is y naught. मैंने देखो यहाँ पे मार्क कर दिया. मैं मार्क कर दिया. Suppose this is when your output is y naught. Now, as your income increase, suppose your income becomes y1 आगे चली गई है. Suppose your income increase as y1. इनकम बढ़ गई है. तो इनकम बढ़ गई है तो मनी सप्लाई पे असर पड़ेगा या मनी डिमांड पे? मनी डिमांड पे सर. और मनी डिमांड राइटवर्ड जाएगा लेफ्टवर्ड? मनी डिमांड सर राइटवर्ड जाएगा, बढ़ेगा सर. हाँ, तो ये मेरा नया मनी डिमांड कर्व बन गया. ये बन गया. ये कब है? जब के वाई 1 है, जब इनकम आपकी y1 है. मनी डिमांड मनी सप्लाई से कहां मिल रहा है? अब नए वाला मनी डिमांड नए वाले पुराने वाले मनी सप्लाई से इस पॉइंट पे मिल रहा है. तो दिस इज योर इक्विलिब्रियम. न्यू इक्विलिब्रियम. न्यू इक्विलिब्रियम. I1 रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया. रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, I1 हो गया. कब? जब आपकी इनकम बढ़ी थी या कम हुई थी? बढ़ी थी. तो ये मैंने पॉइंट आ गया. अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूं, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देता हूं, तो मेरा जो ग्राफ बनेगा उसको कहेंगे हम LM कर्व. क्या कहेंगे? LM कर्व. तो व्हाट डज योर LM कर्व शोज? LM curve shows, first of all, LM curve is your upward sloping curve, and LM curve shows all the combination of I and Y, such that your goods market is in equilibrium. Sorry, such that your money market is in equilibrium. Yes. LM curve shows all the combination of I and Y, such that your goods market is in equilibrium, whereas LM shows all the combination of I and Y such that your goods market is in equilibrium. Money market is in मनी equilibrium. मार्केट सर. Yes or no? तो LM schedule or money market equilibrium schedule shows all combination of I and level of income such that demand for real balance equals to supply and money market is in equilibrium. And this is the equation of your what? Money market. If I solve it for I, if I solve it for I, HI इधर KY माइनस M बार अपॉन में P बार. I यहीं रखता हूं, H को इधर भेज देता हूं, तो 1 अपॉन में H KY माइनस का M बार अपॉन में P बार. दिस इज द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट. ये LM की इक्वेशन है बच्चों in terms of I. This is the equation of LM in terms of I. Equation of LM in terms of I. बच्चों समझ में आ गया? ये देखिए, ये इक्वेशन आपको नजर आ रही होगी. ये समझ में आ गई इक्वेशन कैसे डिराइव हुई? समझा पाया हूं? यस सर. स्लोप ऑफ IS क्या होती थी? अब अपने फोन को वर्टिकल कर लिया होगा. स्लोप ऑफ IS क्या होती थी? IS की स्लोप क्या होती थी? सर -1 बाई गवर्नमेंट मल्टीप्लायर B. हाँ, -1 अपॉन अल्फा G बार B, -1 अपॉन अल्फा G बाई B, अल्फा G B. माइनस अल्फा G बार B होती थी IS की स्लोप. अब LM की स्लोप देखते हैं. स्लोप ये हमारी I की टर्म्स में इक्वेशन है 1 अपॉन में H KY माइनस M बार अपॉन में P बार.
क्योंकि आई में चेंज आया है वाई की वजह से, सो आई विल डिफरेंशिएट आई with respect to y, तो it become del I by del y। तो क्या आ जाएगा बताइए जरा। सर ये तो आ जाएगा 1 अपॉन सॉरी KY एच आएगा ना सर, 1 अपॉन एच वाई, देखिए k अपॉन एच आ जाएगा क्या? यस सर, K अपॉन एच। हाँ सर। बाकी Yes or no? यस सर। देखिए ये 1 अपॉन एच इसके साथ भी गया, ये 1 अपॉन में एच इसके साथ भी गया, तो ये बन गया k बाई एच वाई। ये ऐसे बन गया, देखो k बाई एच वाई, ये बन गया 1 अपॉन में एच एम बार पी बार। ठीक है, अब y के डेरिवेटिव, y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, तो y का तो 1 और जो उसके साथ है वो एज इट इज, दैट इज k बाई एच माइनस ये कांस्टेंट है, इसमें कहीं पे y नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव आ गया 0। तो आपकी स्लोप ऑफ LM होती है k बाई एच, k बाई एच, वेयर k इज व्हाट सर इनकम सेंसिटिविटी ऑफ इनकम। इनकम सेंसिटिविटी। यस सर। ठीक है, और व्हाट इज h? इंटरेस्ट सेंसिटिविटी। ठीक है, एक तो ये हो गया। नाउ इफ अगर इनकम सेंसिटिविटी ज्यादा है, इनकम सेंसिटिविटी ज्यादा है, इनकम के अकॉर्डिंग ज्यादा चेंज आता है मनी की डिमांड में। ठीक है, तो के ज्यादा है मतलब स्लोप ज्यादा है, तो अगर स्लोप ज्यादा है मतलब अगर के ज्यादा है क्योंकि न्यूमरेटर ज्यादा है, तो आपकी स्लोप ज्यादा होगी, और अगर आपकी स्लोप ज्यादा होगी योर कर्व बिकम स्टीपर। whereas if your h is more, if your h is more, then your LM will become flatter. Yes or no? यस सर। Okay, ये हो गया, ये हो गया। ये पढ़ लो एक बार, ये मेरे सामने एक बार ये रीड कर लो जो मैंने अभी पढ़ा दिया आपको, ये सब पढ़ा दिया मैंने आपको, ये रीड कर लो एक बार, फिर आगे चलूंगा। सर और थोड़ा जूम आउट कर दिखाई नहीं दे। लास्ट वाला पॉइंट सर, मनी सप्लाई को शिफ्ट करने वाला, ये तो हम नहीं पढ़े ना सर अभी। अभी नहीं पढ़ा, ये पढ़ा देता, बाकी पढ़ लिया। हाँ सर। ठीक है, अब LM को शिफ्ट करूंगा, उससे पहले जो चीज इसने नहीं दी गिवन है वो देख लीजिए। पॉइंट्स ऑफ एंड ऑन द LM कर्व। तो पता है LM ये IAS एंड LM के टॉपिक्स को अलग से पढ़ाया जाता है, मतलब UPSC के लिए, IES के लिए जस्ट IAS और LM को पढ़ने के लिए बच्चे बहुत बड़ी अमाउंट पे करते हैं मार्केट में, क्योंकि बाकी फिर भी समझ में आ जाता है, लेकिन ये वाला अपने आप में एक टफ हो जाता है, और इसकी अमाउंट चली जाती है 10 to 12,000 कोर्स की,
मतलब पूरे आपके कोर्स की नहीं, जस्ट और जस्ट आईएएस और एलएम को समझने की। अभी अभी और भी पार्ट है, 2 चैप्टर में आप काफी कुछ सीख जाएंगे। आपको आईएएस एलएम के 2 चैप्टर पढ़ने। हाँ जी, यहां हम लेते हैं इनकम। ठीक है, तो यू शुड बी ग्रेटफुल टुवर्ड्स योर यूनिवर्सिटी और योर कॉलेज that you are getting all these things, and I guess this is what I can do only, कि आपको शायद समझ में आ रहा होगा। हाँ सर। ठीक है, यस सर। सो एलएम कर्व क्या शो करता है आपको? LM shows all the combination of I and Y such that your goods money market is in equilibrium. Money demand equals to MS, है ना? इस ग्राफ पे नहीं है, इस ग्राफ पे मनी सप्लाई मनी डिमांड नहीं है, यहाँ पे तो इनकम और आई है। पर मुझे पता लगता है अगर मैं एलएम पे हूँ कहीं पे भी, तो मुझे पता है ये आई और वाई के वो कॉम्बिनेशन है कि मेरा मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में होगा। यस सर। अगर व्हाट if your income level remains same and your interest rate increase, what does all the points above the LM means? अगर इनकम यही हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो लोग पैसे की डिमांड कम करेंगे या ज्यादा करेंगे? कम करेंगे सर। कम करेंगे। यस सर। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज्यादा है तो आप अपना पैसा कहाँ रखना चाहोगे? बैंक में सर। तो आप पैसे की डिमांड क्या करोगे? कम करेंगे सर। पैसे की डिमांड कम करोगे मतलब मनी डिमांड will be less than money supply. Yes sir. So can I say that is at this point there will be excess supply of money? Yes sir. All the points above the LM curve denotes excess supply of money. And if at the same income level we decrease the rate of interest, then what does it mean? If rate of interest is less, then you will demand more money. So money demand will be more than money supply. So there will be excess demand of money. Yes or no? Yes sir. So this is the meaning of points of and point on the LM curve. ठीक है सर। अब आगे हाँ बताइए सर। ऊपर हो या नीचे हो, दोनों में मतलब एक्सेस ही होगा? बच्चे एक्सेस तो होगा, बट वो अलग लिखते हैं ना मैंने, यहाँ एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी है, यहाँ एक्सेस डिमांड है। जी सर। है ना? डिमांड और सप्लाई के कंटेक्स्ट में देखो, एक्सेस के कंटेक्स्ट में मत देखो। जी सर। सब ठीक है, आगे चलते हैं। अब शिफ्ट इन एलएम कर। शिफ्ट इन एलएम कर। आज मेरा एलएम कर को शिफ्ट करा दूंगा, ये ग्राफ बता दूंगा। ठीक है, आज ये वाला चैप्टर 90% ओवर हो गया, यहाँ तक करा दो मेरी कमीशन। शिफ्ट इन एलएम कर्व। मैं पहले जल्दी से एक बार आपको फिर से क्विकली एलएम कर्व ड्राइव कर लेता हूँ क्विकली। मैं बच्चों एलएम को शिफ्ट करके दिखा रहा हूं जब इनकम बढ़ेगी। आपका टास्क रहेगा जब इनकम क्या होगी? हाँ, आपको करना है जब इनकम कम होगी। ये जब आप आओगे ना कॉलेज, मैं स्कूल टीचर की तरह नोटबुक चेक करूंगा आपकी। याद रखना ये बात।
ये था बच्चे इनिशियली, ठीक है, ये मेरा इनिशियल कर्व था। यस और मैं मान लेता हूँ, देखो मैं कंफ्यूज नहीं करते हुए, वैसे तो मुझे एक और मनी डिमांड बनाना चाहिए ताकि मैं इनकम डिराइव कर सकूं, पर मैं मान लेता हूँ मेरा ये एलएम कर्व बना हुआ था। अभी मान के चलो, मतलब मैंने वो वाला पॉइंट नहीं बनाया कि एक और मनी सप्लाई बनाओ, मनी डिमांड बनाओ, ठीक है, वो यहाँ इसको काटे, यहाँ से एक एलएम का ड्राइव हो, तब जाके इन दो पॉइंट को ज्वाइन करूं तो मेरा एलएम का ड्राइव हो। मैं वो पॉइंट स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वो मुझे आता है, वो मुझे आता है, मेरे को एलएम कर्व नहीं ड्राइव करके दिखाना। मेरा टास्क इस बार एलएम कर्व ड्राइव करना नहीं है। आर यू गेटिंग मी? यस सर। है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो। सपोज मनी सप्लाई इंक्रीज, नाउ व्हाट हैपन इफ मनी सप्लाई इंक्रीज? इफ योर मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी इंक्रीज, then your money supply curve will shift rightward. Yes sir. If your money supply curve shift rightward, then your new equilibrium attain at this point, because when money supply in the economy increase, then at same income level, देखो income level में कोई चेंज नहीं है, आउटपुट वही प्रोड्यूस हो रहा है, वाई नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि मनी सप्लाई चेंज हुई, इकोनॉमी में ज्यादा पैसा आ गया, क्योंकि इकोनॉमी में ज्यादा पैसा आ जाएगा तो क्या होगा, इकोनॉमी में जब ज्यादा पैसा आ जाएगा तो इकोनॉमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होने लगेंगे, कम होने लगेंगे। इकोनॉमी में जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होंगे तो लोग अपने पैसे की डिमांड करेंगे ज्यादा। तो एट सेम इनकम लेवल नाउ इंटरेस्ट रेट डिक्रीज, यस और नो? यस सर। इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हुआ है, इनकम लेवल सेम है, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हुआ है, इनकम लेवल सेम है। सो मैं इस पॉइंट से अपने एलएम कर्व को, नए एलएम कर्व को डिक्रीज कर दूंगा, मतलब राइटवर्ड शिफ्ट कर दूंगा। सो व्हेन योर इनकम इंक्रीज, मनी सप्लाई इंक्रीज, हाँ, व्हेन योर मनी सप्लाई इंक्रीज, एमएस कर्व shift rightward. MS curve shift rightward. Excess supply of money हुआ, मनी ज्यादा आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गए, एट सेम y लेवल, मनी LM curve shift rightward. Yes or no? ठीक है सर। ओके, आपको LM की राइटवर्ड शिफ्टिंग आ गई, लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग आप खुद कर लेंगे। ओके, LM की राइटवर्ड शिफ्टिंग आप खुद कर लेंगे, ठीक है, मतलब लेफ्टवर्ड। इसकी एक वैल्यू भी होती है, वैल्यू नहीं दी हुई, वैल्यू में बताता हूँ बच्चों। LM की राइटवर्ड शिफ्टिंग हो गई, अब कितना शिफ्ट हुआ होगा, ध्यान से एक चीज और देख लो। I की वैल्यू क्या होती है, 1/h KY M बार P बार, यस और नो? ये बताइए I में चेंज किसकी वजह से आया? I में चेंज आया ना, बस ये देखिए, I में चेंज आएगा ना, बस एट सेम इनकम लेवल I डिक्रीज, तो किसकी वजह से आया? मनी सप्लाई। हाँ, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू मनी सप्लाई, ये राइट हैंड रूल है। यस सर। ई आई ड्राइव करना था तो विद रिस्पेक्ट टू वाई ड्राइव किया, डिफरेंशिएट किया था, तो मैं इसको मनी सप्लाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेट कर रहा हूँ। जब मनी सप्लाई के रेस्पेक्ट में आप डेरिवेट करेंगे तो क्या बचेगा, -1/h। वेरी गुड होमेंद्र, -1/h। पता है ना, ये माइनस, ये इसके साथ भी गया होगा और ये h इसके साथ भी गया होगा, इसके साथ गया होगा तो ये 0 हो गया होगा डेरिवेटिव होके, तो माइनस का 1/h आएगा। हाँ, अब इंटरेस्ट रेट में कितना चेंज आया होगा ये कैसे पता लगेगा, 1/h इंटू, इसको उधर ले जाइए आप, d, जितना मनी सप्लाई में चेंज आया, मनी सप्लाई का चेंज इंटू माइनस का 1/h, इतना चेंज आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट में आया होगा। मतलब क्या कह रहा हूं मैं,
मतलब मैं ये कह रहा हूं, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का चेंज है, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का चेंज है डी आई, ये कितना है? माइनस का 1 में एच डी एम बार पी बार। समझ में आया? और कैसे है पता लग गया? हाँ भाई बोलो। क्या सर? आपके सामने डेरिवेटिव पता लग गया? ये एलएम में शिफ्टिंग क्या होती है और हाँ सर कितना शिफ्ट हुआ? यस सर। ठीक है, ये भी हो गया। अब आ जाइए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज 10.3 गुड्स एंड मनी मार्केट इक्विलिब्रियम। Goods and money market equilibrium. When we study this goods and money market equilibrium, यहां हम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं और यहां हम आउटपुट लेते हैं। ठीक है, ये मेरा एलएम कर्व होता है। इट शोज ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ आई एंड वाई सच दैट मनी मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम। ये आपका आईएस कर्व होता है। It shows all the combination of I and Y such that your money market, goods market is in equilibrium. जहां IS LM कर्व को इंटरसेक्ट करेगा, वो आपका इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इक्विलिब्रियम आउटपुट लेवल होगा। इस पॉइंट की क्या सिग्निफिकेंस है, प्लीज ध्यान सुनना, एक बार रिपीट कर रहा हूं। LM curve shows all the combination of I and Y such that money market is in equilibrium. IS curve shows all the combination of I and Y such that goods market is in equilibrium. But at this point, this is the combination of I and Y such that goods and money, both the market is in equilibrium. Yes or no? यस सर। पक्की बात? हाँ सर। At this point, your goods and money market both are in equilibrium. Yes? ये बात समझ में आई? हाँ सर। अब इसका एल्जेब्रा सोल्व करना है तुम्हें। एक बार मैं थोड़ा सा आपको एक टास्क दूंगा। पहली बात तो आपको एलएम की लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग सिखानी, मेरे को नोटबुक में करके दिखाओगे। एलएम कर्व ड्राइव करना आना चाहिए। तुम्हारे पेपर में ना डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, show the derivation of IS curve, show the derivation of LM curve, show the rightward shifting of IS LM, show the leftward shifting of IS and LM, है ना? IS की इक्वेशन बताओ Y की टर्म्स में क्या थी? IS की इक्वेशन बच्चों Y की टर्म्स में देखते हैं, LM की इक्वेशन I की टर्म्स में देखते हैं। बताइए Y की टर्म्स में IS की इक्वेशन क्या थी? तुम्हें याद नहीं होती है। अल्फा G बार A बार माइनस का BI, where alpha G bar was 1/1 minus C 1 minus T. IS की LM की इक्वेशन क्या है I की टर्म्स में? बताइए, कब बताएंगे? बताओ सर के वाई वाई माइनस एम बार अपन पी बार। ये आपकी I की इक्वेशन है। जब आप इस I की वैल्यू को यहां पुट करोगे, जब आप इस I की वैल्यू को यहां पुट करोगे, by putting I value into Y equation, IS इक्वेशन, हाँ, जब आप यहां पुट करेंगे तो मैं आपको एक लिख के दे रहा हूं और मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि आप इसको निकाल के दिखाएंगे, अदरवाइज मैं कल करके दिखाऊंगा। तो आपकी फाइनल इक्वेशन, इस आउटपुट की वैल्यू पता है क्या आएगी? इस आउटपुट की वैल्यू आएगी गामा ए बार प्लस गामा बी बाई एच एम बार पी बार। मैंने एक नई चीज जोड़ दी है, गामा।
गामा वेयर गामा की वैल्यू क्या होगी? गामा होता है H अल्फा जी बार H प्लस के अल्फा जी बार बी, ये गामा की वैल्यू होती है। हाँ, अब आप करके देखेंगे कि ये कैसे आएगी। ये इक्वेशन ड्राइव करके दिखाना आपका टास्क है। ठीक है? ठीक है सर। चलो अब अटेंडेंस दो। सर आज पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा सर, ये वाली अपडेटेड वाली थोड़ी। सर अब हल्का से जूम। हाँ, अटेंडेंस दो। जुमारा हो गया? जी सर ठीक है। हाँ, क्रिस दिवाकर। क्रिस दिवाकर, नकुल, शिवेंद्र, प्रेजेंट सर। विक्रम मिश्रा, प्रेजेंट सर। नाम बोलिए बच्चे। प्रियेश कुमार निशांत। यस सर प्रियेश। सिद्धार्थ, यस सर सिद्धार्थ। मिष्ठी, उबेद, उबेद, कार्मिन, कार्मिन। कार्मिन कौन है? जी सर प्रेजेंट सर कार्मिन। केशव महेश्वरी, यस सर केशव। भगवान दास मीना, हिमांशु कुमार, हिमांशु कुमार, यश, यस सर यश। हिमांशु क्या पढ़ाया आज? हिमांशु, I will not mark him now. साधना, Yes, sir, present. Sadhana. मोहम्मद आसिम, यस सर मोहम्मद आसिम। अमिताभ दास, विशाल कुमार सिंह, प्रेजेंट सर। आदित्य जायसवाल, मनीष कुमार, यस सर मनीष। के महिती, आर्ची गोयल, Sir, Archie. प्रिया कुमारी, विवेक गंगवार, ईशु दलाल, यस सर ईशु। विशाल कुमार यादव, यस सर विशाल। अनिकेत, यस सर अनिकेत। हार्दिक शर्मा, यस सर हार्दिक। गोविंद्र, यस सर होविंद्र। अमन उपाध्याय, यस सर अमन। अशिता देवी, Present Ashita. यश अग्रवाल एंड अनन्या शर्मा। Present Sir Ananya. तो बच्चों ये कर लेना आप, एलएम को ड्राइव करना और उसकी शिफ्टिंग, उसके बाद इसकी इक्वेशन में थोड़ी सी मेहनत करना। 2-3 बार पेज खराब होंगे, गूगल पे मत चले जाना, मैं हूं बताने के लिए, पर पहले ट्राई करो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो थोड़ी। ठीक है, चलो बाय। सर पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा सर आज। ठीक है।